Good morning everyone. Today we will discuss our chapter tissue. The initial explanation was sent to you yesterday. Today we will consider about the permanent tissues. The permanent tissue in plants. The permanent tissue in plants is mainly categorized into two types. One is called as simple permanent tissue and the other one is known as complex permanent tissue. The simple permanent tissue, the difference between the simple and complex permanent tissue is that the component tissue, the number of cells which are forming the simple type of tissue, they are having same origin, they have same structure, and all together they are performing a common function. In case of complex tissue, their constituting cells are having different origin, different structure, and all together they are performing common function. Okay. The permanent tissues are such kind of tissues which are generally formed by meristem through a process called differentiation. Meristems are the dividing tissues which continuously add new cells to the plant body. Few of these cells group together to form permanent tissue through a process called differentiation. And as soon as they will form the permanent tissue, they will lose their ability to divide. Dividing ability is lost. Then the permanent tissue in plants, they are mainly categorized into two types, simple and complex. Simple tissues are those whose constituting cells are having the same origin and structure, and altogether they are performing common function. But in case of complex, the constituting cells are having different origin and structure, and altogether they are performing common function. ठीक है. So in case of permanent tissue, the dividing property is lost. ठीक है. So first of all we will consider the simple permanent tissue. In case of simple permanent tissue, we have three types. One is called as parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma. Already we have studied these tissues, so here we will revise them all together. We'll compare between the three types of permanent tissue. Here we will write their features. Okay. Out of these, any kind of tissues, the tissue which is abundant in plant, it is parenchyma. ठीक है. तो फीचर्स में अगर हम इनकी लोकेशन के बारे में बात करते हैं, तो इन केस ऑफ लोकेशन द parenchyma टिश्यू इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड. हर पार्ट ऑफ प्लांट में आपको parenchyma मिलेगा. इफ़ यू टॉक अबाउट collenchyma, you will find these in stalk of leaves. या जितने भी फ्लेक्सिबल पार्ट हैं प्लांट्स के, आपको वहाँ मिलेगा. ठीक है. जो थर्ड है sclerenchyma. Sclerenchyma we will find it in husk of coconut and the hard parts of plant, जैसे सीड्स में, ठीक है, नट्स में, है ना. अराउंड दी वस्कुलर बंडल्स आर द xylem and phloems. Around the vascular bundles, या we can say vascular tissues. ठीक है. The simple permanent tissue is mainly categorized into three types: parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma, on the basis of their location and function, and also the structure. ठीक है. Now we'll talk about the nature of these cells, whether they are living or not. If we talk about nature, parenchyma cells are living cells. Collenchyma are also living cells, but the sclerenchyma constitutes only the dead cells.
ठीक है. If we talk about their cell wall, the thin cell wall of parenchyma is thin. In case of collenchyma, it is thick at corners, and sclerenchyma, it is thick from all the sides due to the deposition of a cementing substance, lignin. काफ़ी स्ट्रांगली थिक होते हैं ये. ठीक है, सेल वॉल भी हो गई. अब इंटरसेलुलर स्पेस, सेल्स के बीच में क्या कितना स्पेस क्या कुछ है उसके बारे में. जो पेरेंकाइमा है ये लूजली अरेंज्ड होते हैं, दैट मीन्स इंटरसेलुलर स्पेस इज लार्ज. यहाँ पे थिक है कॉर्नर्स में तो स्पेस थोड़ा सा कम हो जाएगा. तो इन केस ऑफ कोलेनकाइमा वी हैव मॉडरेट अमाउंट ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस. एंड स्क्लेरेनकाइमा ये कम्प्लीटली थिक होते हैं, इसलिए यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट मिलेगा या लिटिल मिलेगा. ठीक है, फिर हम इसके बाद पढ़ते हैं पर्टिकुलरली इसके फंक्शंस के बारे में. वी टॉक अबाउट द फंक्शंस. ठीक है, अब सबसे वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है पेरेंकाइमा. पेरेंकाइमा जो है उसके तीन फॉर्म्स में अपीयर करता है. अगर जो पेरेंकाइमा है इफ इट इज़ कैपेबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस देन इट्स फॉर्म इज नोन एज क्लोरिन. Spelling mistake is there. We will consider its functions on next week. So if we talk about the functions of all those tissues, I will write here P for parenchyma, C for collenchyma and S for sclerenchyma. If we talk about the functions of parenchyma, the parenchyma, if it helps to perform photosynthesis, then such type of parenchyma is known as chlorenchyma. If it is meant for storage of nutrients like in a sweet potato, अगर रूट्स न्यूट्रिएंट स्टोर करते हैं तो उस तरह का पेरेंकाइमा कहलाएगा स्टोरेज पेरेंकाइमा. अगर कुछ प्लांट्स में ये बोयेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं aquatic plants को, दे parenchyma cells help them to float over the surface of water. It occurs due to the presence of a parenchyma called arenchyma, जिनके सेल्स के बीच में एयर कैविटीज़ होती हैं जिसके कारण वो फ्लोट कर पाते हैं वाटर सरफेस पे. ठीक है, जो कोलेनकाइमा है इसका मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है? इसका काम है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, जिससे जो भी प्लांट के पार्ट्स हैं जब तेज़ हवाएं चलती हैं दे कैन ईजिली अंडरगो बेंडिंग हो सकती है इनकी, लेकिन ज़्यादा फोर्स पड़ेगी तो वो टूट जाएंगे. ठीक है, और जो स्क्लेरेनकाइमा है जो डेड टिश्यू है इट इज जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सपोर्ट. एंड सपोर्ट, द टाइप ऑफ सपोर्ट इट इज प्रोवाइड इज मैकेनिकल सपोर्ट. ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट द सिंपल परमानेंट टिश्यू. नेक्स्ट यू हैव टू स्टडी द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिनके कॉन्स्टिट्यूटिंग सेल्स जो हैं उनके ओरिजिन भी सेम होता है. Their structures, the cell structures are also different, but together they are performing common function. जो complex tissues है इसमें आते हैं xylem and phloem. ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनकी similarities. तो इनकी similarities क्या है? Both are conducting tissues of plants. Conducting tissues है means कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट करने में ये हेल्प कर रहे हैं. जाइलम है, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सैप, वाटर एंड मिनरल्स. एंड इन केस ऑफ फ्लोएम इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, है ना. तो ये कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं प्लांट्स के, कुछ ना कुछ कंडक्ट कर रहे हैं. सेकेंडली, बोथ ऑफ द टिश्यूज़ आर मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट्स. ये 4 एलिमेंट्स से मिलके बने हैं. ठीक है, ये इनकी सिमिलैरिटीज़ हो गई. ठीक, फिर और क्या सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं जाइलम और फ्लोएम की? एक तो ये कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं, 4 एलिमेंट्स हैं. इनके दोनों के पास सबसे जो कॉमन चीज़ जो इनके पास प्रेजेंट है, प्रेजेंस ऑफ फाइबर्स आर प्रेजेंट टू प्रोवाइड देम मैकेनिकल सपोर्ट. ठीक है, तो ये इनकी सिमिलैरिटीज़ हैं. अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी देयर डिफरेंसेस.
जाइलम में और फ्लोएम में। ठीक है, जाइलम इट हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ सैप, है ना। फ्लोएम इट विल हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ, इट विल हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ फूड। सैप क्या है, सैप वाटर एंड मिनरल्स दोनों का ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस इज दिस, दोनों 4 एलिमेंट से बने हैं बट देयर 4 एलिमेंट्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। जाइलम में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, वेसल्स हैं, ट्रेकीज हैं, जाइलम पैरेन्काइमा है एंड जाइलम फाइबर्स। जो फ्लोएम है, फ्लोएम के पास क्या प्रेजेंट है, इनके पास प्रेजेंट है सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, और क्या होता है इनके पास, इनके पास भी फ्लोएम पैरेन्काइमा मिलेगा एंड द फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, अब इनके पास जितने भी टिश्यूज़ हैं जाइलम के पास, इसमें से सभी टिश्यूज़ डेड है। ऑल टिश्यूज़ आर डेड एक्सेप्ट द वन दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, जो फ्लोएम है इसके सभी टिश्यूज़ हैं लिविंग एक्सेप्ट द वन दैट इज फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, अब ये जो जाइलम है इट हेल्प्स इन द कंडक्शन, अब ये जो है जाइलम इट हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ सैप। सैप की कंडक्शन केवल एक ही डायरेक्शन में करता है एंड दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, जैसे रूट से टॉप ऑफ द प्लांट तक। ठीक है, बट जो फ्लोएम है ये 2 डायरेक्शन में मूवमेंट करवा सकता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज बाई डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ फूड, क्योंकि लीव्स हर जगह प्रेजेंट होते हैं, तो बाई डायरेक्शनल, या तो टॉपवर्ड अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स, दोनों ही डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन डिफरेंसेस हैं जाइलम और फ्लोएम के बीच में। ठीक, तो ये इसके थ्रू आपका कंप्लीट हो गया परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो आई विल सेंड यू द वीडियो ऑफ परमानेंट टिश्यू टुडे।